Hi guys, welcome back to my channel. So first of all, a very big thank you to all of you guys for showing so much love to my Christ University videos. And with that motivation, I'm back with yet another video that will solve all of your doubts regarding the micro presentation and the skill assessment round. Okay? So in this video, we will cover some do's and don'ts and some tips that you should definitely follow so that आपका Christ University में easily admission हो जाए. ठीक है? Plus I'm going to tell you some important topics for both of these rounds and जिसको आपको बिफोर हैंड प्रिपेयर करना है सो दैट यू विल हैव अ बेटर एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, सो या मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो. So before moving further into this video, answering the most doubtful question कि what is micro presentation? Micro presentation is simply an extempore round in which you will be given a topic and you have to speak about that topic for about 1 to 2 minutes. ठीक है, in this round you are judged for your language, how you speak, your body language, your grammar, vocabulary and all that. ठीक है, this round starts as soon as your interview ends. ठीक है, so जैसे आपका interview end हुआ, जो interviewer है आपका वो आपको एक टॉपिक देगा and you will then be provided with some seconds and you have to think and gather all of your thoughts regarding that topic and try to jot down the key points so that आप बाद में blank मत हो जाओ उनके सामने. ठीक है, so now let's move on to all the do's and don'ts that you should follow. So first let's cover all your do's. So सबसे पहले तो please try to be calm and confident throughout your presentation. I know थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब कोई सामने बैठा हो presentation में, but try not to show that on your face. ठीक है, उसके बाद तो speak clearly and politely and make sure that your content has proper ending, body and conclusion या introduction सब अच्छा हो and try to maintain a good body posture और gesture so that उनको अच्छा लगे जब आप actions के साथ उनको सब समझा रहे हो. ठीक है, and make sure कि जो आपकी जो vocabulary है, grammar है, वो सब apt हो because वो उसी के according ही आपको assess करते हैं. and please try करना कि आप अपने सारे points को jot down पहले से कर लो because बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप बाद में भूल जाते हो. ठीक है, एंड ट्राई टू बी अ गुड लिसनर एंड अगर आपको उनका कोई क्वेश्चन जो उन्होंने आपसे पूछा है वो समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम टू रिपीट अगेन. दे विल डोंट होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट यू एंड वो अच्छी तरह से रिपीट करके आपको समझा देंगे. एंड या सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑल द डोंट्स. तो सबसे पहले तो अपने आप को काम ही रखना एंड नर्वसनेस अपने चेहरे पे शो मत करना सो दैट उनको लगे कि आप नर्वस हो रहे हो बिकॉज उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. and try to speak to the point. So try to speak in front of the mirror and record your timings कि आप कितनी देर में क्वेश्चन कंप्लीट करके बोल रहे हो. एंड प्लीज डू नॉट आर्ग्यू और इंटरप्ट कि जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो उनको कि हाँ आई नो द आंसर ऑफ दिस एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग द आंसर. प्लीज ये मत करना. ट्राई टू बी अ पेशेंट एंड लिसन टू देम प्रॉपरली. सो नाउ रिगार्डिंग योर important topics, I have added a PDF in the description box regarding all the topics that are important for both micro presentation and your skill assessment round. So yeah, don't forget to check it out and the link is in the description. ठीक है, so now let's move on to the tips for both of the rounds and उससे आपको बहुत ही helpful लगेगा and I know कि उसके कारण आप definitely crack कर पाओगे Christ University में अपना admission. So the first point is to use your preparation time very well because बच्चे ऐसे बहुत over confident होते हैं कि यार ये तो easy topic है या easy question उन्हें दिया है, इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, I don't need time to think and etc. बट जैसे ही आपका MP स्टार्ट होता है ना आप सब भूल जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो. सो ट्राई टू जॉट डाउन ऑल द की पॉइंट्स जो आप बोल सकते हो या जिसके बारे में टॉपिक्स या पॉइंट्स बन सकते हैं एंड उसके बारे में आपका इजीली 1 to 2 मिनट्स तक स्ट्रेच हो सकता है, तो वो पॉइंट्स आप लिख लो. ठीक है, सो योर सेकंड टिप इज टू डिस्क्राइब योर टॉपिक वेरी वेल. सपोज अगर आपको वो क्वेश्चन देते हैं कि हाउ डज WHO ट्राई टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल, तो सीधा ये मत बोलना शुरू कर देना कि WHO ने ये करा है दिस दैट ऑल दैट. ठीक है, तो ये सीधा नहीं बोलना है. स्टार्ट कि WHO होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म, WHO किसकी तरफ काम करता है, कब WHO फाउंड हुआ था, तो ये सब पहले स्टार्टिंग में बोलना सो दैट वो आपसे पहले ही इम्प्रेस हो जाए कि हाँ बच्चे को अपने टॉपिक में वेल नॉलेज है. ठीक है, सो योर थर्ड टिप इज टू एड्रेस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मीनिंग कि सपोज कि उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ड्यू और क्राइस्ट एंड सपोज आपने बोला क्राइस्ट, तो उसकी आपको प्रॉपरली नेसेसरी एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपने क्राइस्ट क्यों चूज करा एंड व्हाट वाज योर थिंकिंग बिहाइंड दैट एंड उनको वो इंप्रेसिव लगता है बिकॉज आप अपने रियल व्यूज दे रहे हो उस टॉपिक के पीछे. ठीक है, सो योर फोर्थ पॉइंट इज टू प्रैक्टिस एवरी डे. प्रैक्टिस इज द की एंड जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं इन द PDF, ट्राई टू पिक वन टॉपिक ईच डे
एंड उसके बारे में आप मिरर में देखकर बोलो, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए एंड उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इंक्रीज होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्किल असेसमेंट एंड लेट्स सी स्किल असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। सो स्किल असेसमेंट इज अ रिटन एबिलिटी टेस्ट जो बहुत देर बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने फिर से ऐड कर दिया है इन देयर एडमिशन प्रोसीजर, एंड इन दिस यू आर जज्ड अबाउट योर राइटिंग स्किल्स कि आप कैसे लिख रहे हो, सो दैट ट्राई टू मेंटेन अ स्पेशल पैटर्न ऑफ योर कंटेंट कि पहले इंट्रोडक्शन आए, फिर आपकी बॉडी आए, देन योर कंक्लूजन। बॉडी में ट्राई टू गिव मोर एंड मोर ऑफ द एग्जांपल्स सो दैट वो चेकर को भी थोड़ा सा इंप्रेसिव लगे, ठीक है। सो इन दिस यू आर मेनली प्रोवाइडेड विद 2 or 3 क्वेश्चंस। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन और योर टॉपिक द वर्ड लिमिट इज 50, whereas for the second it is 100 to 150 words, and जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली या ब्रॉडली डिवाइड हो सकते हैं इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट बीइंग योर करंट अफेयर्स, सेकंड साइकोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन, एंड थर्ड इज ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक ड्यू या क्राइस्ट। तो इसमें आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने हैं कि आप क्यों चूज कर रहे हो एंड व्हाई, ठीक है। सो द लास्ट टिप दैट आई विल गिव यू इज दैट प्लीज बी अपडेटेड विद ऑल द करंट अफेयर्स बिकॉज स्किल असेसमेंट में करंट अफेयर्स होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट्स होते हैं प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। सो या मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।